Symbolic representations of Buddha, Buddhist monuments of Sanchi. The remains of the Buddhist monuments of Sanchi are in central India. Sanchi was a prosperous city until about the 12th century. This site had been left abandoned and was overrun with vegetation when it was discovered in 1818. This stupa, built in the 3rd century BC, enshrines the remains of Buddha. It's an early prototype of Buddhist stupas found today. It was originally built with bricks and was about half the size. Statues of Buddha did not exist at that time because people worshipped the stupa as a symbol of Buddha instead. Canopy layers known as shatra at the top of the stupa represent Buddha's past, present and future. There are 4 gateways known as torana at each side of the stupa. The decorative relief portrays the world of ancient Buddhism. A Yakshi goddess is carved on the east gate. She's a goddess of the forest, worshipped long before Buddhism. This Yaksha, a god of the forest, was carved on the west gate. He's believed to be the origin of the later god figure, Vaisravana. There are carvings of people worshipping the stupa on the north gate. They're making offerings, playing instruments and worshipping. It suggests how important the stupa was to these people. Relief work on the south gate shows how people fought over the Buddha's remains. After the war, they were divided into 8 parts and later into 84,000 parts. This process allowed Buddhists to build numerous stupas throughout Asia. The reliefs show aspects of Buddhism, but there's no image of Buddha. People then believed he was an enlightened supreme being and should not be depicted as human. The point in his life when he left his palace and renounced worldly goods is represented by the soles of his feet and an umbrella. Buddha is represented in many different symbols. This is Buddha deep in meditation, surrounded by evil beings at the moment he achieves enlightenment. Buddha is represented here as a linden tree, the place where he attained enlightenment. There's an image of a wheel and people worshipping it in the center of the west gate. The wheel is known as the Wheel of Law, which represents Buddha and his teachings. Buddha was worshipped in many forms, but it was not until the end of the 1st century that people started to make statues of Buddha in man's image. तो ये तो बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि कवर करेगा आज हम क्या देखेंगे। हमने पिछले हफ्ते 2nd सेंचुरी BC तक आए थे, अशोका का देखा था, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन और रीजनलिज्म का ज़माने में देखा था। ओह, वॉइस इज़ ब्रेकिंग। तो आज हम शुरू करेंगे 1ली सदी BC से, उसके बाद हम लोग कुषाण पीरियड पे आएंगे और कुषाण पीरियड के जो 2 मेन बड़े मरकज़ थे बुद्धिज़्म के, एक मथुरा जो कि आज दिल्ली के रीजन के करीब है और दूसरा गंधारा जो कि ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में पाया जाता है। उन 2 सेंटर्स को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से बुद्धा की शक्ल किस तरह से ज़ाहिर हुई इन ह्यूमन फॉर्म, इंसानी शक्ल कैसे बनी और क्यों बनी। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आखिरी बिग पीरियड ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया विच इज़ गुप्ता पीरियड, 4 से 6 सदी ईस्वी के ज़माने में, 4th to 6th सेंचुरी। तो ये चीज़ें आज कवर करेंगे और उम्मीद है कि वक्त के अंदर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहली जो हमारी एक तरह से टाइप साइट है 1st सेंचुरी BC की, वो बिल्कुल बर्र सग़ीर के एंड बीच में है, सांची मध्य प्रदेश में। तो आगे चलें। तो उसके अंदर हम सांची का जो स्तूपा नंबर 1 है उसकी एज एन एग्ज़ाम्पल उसको देखेंगे और उसके अंदर भी जो मेन गेटवे है उसमें वंस अगेन हमने पहले भी जिक्र किया था कि स्तूपा जो कि एक तरह से अंडे की शक्ल में होता है, उसके इर्द गिर्द एक रेलिंग होती है वेदिका और उसके 4 अमूमन दरवाज़े होते हैं, गेटवेज, जिनको तोड़ना कहते हैं।
तो इसके अंदर बड़े आराम से वाज़े तौर पे हम 3 गेट्स देख सकते हैं, एक चौथा, इस सारे चारों कार्डिनल पॉइंट्स पे पाए जाते हैं। और ये मेरे ख़्याल से वेस्ट गेट है। हम लोग ईस्ट गेट को देखेंगे ज़्यादा गौर से, लेकिन इससे आपको आइडिया इसमें से भी हो रहा है कि सिंबलिज़म जो है गेटवेज़ की किस तरह से चलती होगी। यहाँ पे हमें उसकी एंट्रेंस वे पे यक्ष है, वही जो हमने देवता की सूरत देखी थी शुरू में, जो कि अब बोधिसत्वा या बुधा के अटेंडेंट फिगर्स में तब्दील हो चुके हैं एज गार्डियन फिगर्स, वो नज़र आते हैं। उसके बाद बहुत सारे दूसरे रिलीफ वर्क में कहानियाँ नज़र आती हैं, जाटका टेल्स या बुधा की अपनी गौतम बुद्ध की हिस्टोरिकल कहानियाँ, और साथ साथ बुधा की सिंबल्स भी चल रही हैं। और उसके साथ साथ दूसरे देवियाँ देवता, अमूमन पहले इधर लेवल पे यक्षियाँ हैं जो कि दरख्त के अंदर से नमूदार हो रही हैं। उसके बाद फिर हम अक्सर देखते हैं बुधा की ज़िंदगी के पहलू, और फिर वी कैन आल्सो सी दिस लायंस विच सिम्बलाइज, वंस अगेन वी सॉ दैट इन द, जो जितने भी सिम्बल्स थे जो कि अशोक के ज़माने में डेवलप और इवॉल्व हुए थे, वो अभी तक चल रहे हैं इधर ही। तो आगे चलें। तो हम ईस्ट गेट को देख रहे हैं और उसके अंदर ख़ास तौर पे वही जो भी वीडियो में उन्होंने यक्षी का जिक्र किया, ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स फ्रॉम द 1st century BC, इंडियन स्कल्पचर्स में से इसका बहुत बड़ा नाम है, और इन सिटू है उसी गेटवे पे पाई जाती है। ज़ाहिर ओरिजिनली दो होती थी, यहाँ वहाँ पे एक ही रह गई है। और हम देख सकते हैं, तो इसको हम उसी तरह से देख सकते हैं जिस तरह से हम वंस अगेन कनेक्शन बना रहे थे पहले भी, कंटिन्यूटी ऑफ आइकनोग्राफी एंड सिंबलिज्म इन साउथ एशियन religious expression. तो once again we see a yakshi which is connected to a tree, in this case it's a mango tree, और मैंगो ट्री हमारे अंदर हमारे बरसग़ीर में सिम्बॉलिकली बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकली सिम्बलिज़म जो है वो जेनरेटिव है। इरोटिक सिम्बलिज़म भी इसकी बहुत होती है आम के दरख्त की हमारे ट्रेडिशन में। तो इट्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डिवाइन फेमिनिन इन सम फॉर्म और द अदर, स्पेशली व्हेन इट हैज़ टू डू विद रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। तो इसकी बहुत अच्छी। और दूसरी जो चीज़ हम देखते हैं 1st century BC में स्टाइलिस्टिकली जब कंपेयर करें, पहले क्या हो रहा था 2nd century में, हमने बात की थी कि वो जो बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें बन गई थी, जिसकी वजह से जो स्टाइल था वो एक यूनाइटेड स्टाइल नहीं था जिस तरह से अशोका के ज़माने में था। रीजनल स्टाइल आ गए थे और ज़्यादातर जो स्टाइल थे वो बहुत फ्लैट और हायराटिक और एक तरह से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन जब हम वापस 1st century BC में आते हैं तो फिर से हम नोटिस करते हैं कि जो पुराना तर्ज था हिंदुस्तान में मूर्तियाँ और शक्लें बनाने का, वो वापस आ जाता है, जिसके अंदर जो फिगर्स हैं वो फिर से रियलिस्टिक थोड़े से होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2nd century बारहुत जब हमने पिछले हफ्ते देखा था, और ये 1st century BC जो कि 1 सदी बाद सांची सीधे हाथ पे। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसमें ज़्यादा जान है सीधे हाथ वाली में, ये वाली ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और एब्स्ट्रैक्टेड है। इसमें ज़्यादा डोई एक तरह से मुलायम और एक स्किन जैसी फील आ रही है। इसके अंदर जैसे कि लकड़ी में उन्होंने, इवन तो दोनों पत्थर में बने हुए हैं लेकिन उनकी स्टाइल्स बहुत मुख्तलिफ हैं। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत मुख्तलिफ होना शुरू हो रही है बुद्धिज़्म के साथ साथ, वो ये है कि यक्षी जो कि सबसे पहले अपने इंडिपेंडेंट एक देवी थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बुद्धिज़्म के अंदर आके एक सबऑर्डिनेट गॉडेस बन गई। अब वो मज़ीद एक तरह से डिमोट होना शुरू हो जाती है तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में, और स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट बुद्धिज़्म में शी स्टार्ट्स टू बिकम मोर एंड मोर ऑफ अ वर्ल्डली कोर्टिजन लाइक फिगर। और उसकी भी हम सिम्बलिज़म की बात करेंगे कि कुमार स्वामी ने क्या कहा है कि क्यों है ऐसी तब्दीली क्यों आई। लेकिन जिस तरह से हम देखते जाते हैं कि शी इज़ मच मोर आउट गोइंग, अपनी स्पेस से बाहर आ रही है लिटरली भी, और जिस तरह से उसने कपड़े पहने हैं तो अब वो जो उसने साड़ी या जो भी चीज़ पहनी वो इतनी ज़्यादा ढांक नहीं रही बदन को। तो वो वाली सारी चीज़ें जो हैं, ये एक बड़ी तब्दीली आ रही है पूरे बरसग़ीर की स्कल्पचर में। यही चीज़ आप जैन स्कल्पचर में भी देखते हैं, हिंदू में भी देखते हैं और बुद्धिज़्म में भी देखते हैं कि जो यक्षी फिगर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब सिर्फ़ बाहर की दरवाज़ों पे और दीवारों पे ही नज़र आती है। उसका सेंट्रल फंक्शन नहीं रहता इतना ज़्यादा ज़रूरी, और उसकी जो किरदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा आम
कोर्टिजन लाइक औरत का बनना शुरू हो जाता है. So these are the differences that are happening historically. Next. अच्छा, जस्ट टू कंपेयर, जो हमने अशोका के ज़माने की जो यक्षी देखी थी जिसके अंदर वो बहुत इंडिपेंडेंट थी, उसको ऑन इट्स ओन पूजा जाता था. अब कितना फ़र्क हो गया कि अब वो सिर्फ गेटवे की एक तरह से गार्डियन टाइप फिगर रह गई है. नेक्स्ट. फिर हम लोग थोड़ी सी उसकी रिलीफ्स देखते हैं, क्योंकि सांची की रिलीफ्स जो हैं वो बहुत मशहूर हैं. उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि उस ज़माने में स्टूपास की किस तरह से किस तरह से पूजा जाता था, उनकी किस तरह से पूरी रिचुअल वगैरह हुआ करता था. और साथ साथ हमें उसका ये भी पता चलता है कि स्टाइलिस्टिकली इसमें क्या ख़ास बात है. तो अब फिर से ईस्ट गेट पे ही फोकस कर रहे हैं कि जो इसके जो पिलर्स हैं, अपराइट्स हैं, उसका एक हम रिलीफ देख रहे हैं जिसके अंदर गौतम बुद्ध की पूरी कहानी दिखाई गई है कि यहाँ पे उसकी वालदा महामाया को ख्वाब आया, ये एलिफेंट है, और उसके बाद से फिर कहानी किस तरह शुरू होती है और गौतम बुद्ध की पूरी पैदाइश का मंज़र खींचा हुआ है. इसके अंदर जो रिलीफ्स की स्टाइल है वो ज़्यादा गहरा है. You can see that there's much more deeper relief, which is also another characteristic of the 1st century BC sculpture generally. Next. तो एक चलें इन दो रिलीफ्स के बारे में हम थोड़ा बात भी कर लेते हैं कि इसमें क्या किस्सा दिखाया जा रहा है ना. साइडों पे तो हम फिर से पिलर्स पे बेशतर बुद्धा के सिंबल्स देख सकते हैं, वही वाला व्हील ऑफ लॉ जो कि धर्म की भी अलामत करता है और बुद्धा एज द प्रीचर की भी अलामत करता है. उसी तरह हम और फिर दीगर मिथिक क्रीचर्स भी हैं, विंग्ड लायंस विच रिप्रेजेंट हायर वर्ल्ड्स एंड हायर रेल्म्स एज वेल. और अक्सर हाथियों ने ये जो बड़े बड़े जो पिलर्स हैं उन्होंने अपने कमर पे उठाए होते हैं. और यहाँ पे जो कहानी दिखाई जा रही है वो है द ग्रेट डिपार्चर, यानी बुद्धा ने जब अपना पैलेस जो था वो जब छोड़ दिया था तो उसकी अक्कासी कर रहे हैं इधर. वंस अगेन एन आइकॉनिक, इसमें बुद्धा की अपनी शक्ल कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे उनका पैलेस है और जहाँ जहाँ छतरी नज़र आ रही है वहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे उसके नीचे बुद्धा बैठे हुए हैं. तो सबसे पहले वो अपने घोड़े से निकलते हैं रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, और इस वक्त उनको एहसास हो चुका होता है कि मैं माया जाल में फंसा हुआ हूँ, दुनिया में सिर्फ दर्द और मौत और इस तरह की चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं है, तो मुझे उससे फ़रार होके हकीकत की तलाश करनी है. तो जब उसकी तलाश करते हैं तो अपनी बीवी बच्चे छोड़ के घोड़े पे बैठते हैं, और घोड़ों की ताकि आवाज़ ना आए रात को तो एकदम से फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान से जो कि अपने पैरों को नीचे कर लेते हैं, जिसके ऊपर घोड़ा जो है वो उनके पैरों पे चलता हुआ जाता है, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती किसी को, तो कोई उठता नहीं है और सब यहाँ पे सो रहे हैं. उसके बाद फिर सबसे पहले वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे वो एक ट्री श्राइन, वंस अगेन द आइडिया ऑफ ट्री मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, दोनों रिलीफ्स दोनों के सेंटर में दरख्त हैं. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर हम बर्रे सग़ीर की रिलीजियस डिवोशनल एक्सप्रेशन को एक सिंबल में अगर निचोड़ दें तो वो हम कहेंगे कि वो एक मुक़द्दस दरख्त जिस चीज़ की अक्कासी करता है, अलामत करता है, वो आपको हर जगह नज़र आता है. वही चीज़ फिर पिलर के फॉर्म में तब्दील हो जाती है. वो सिम्बलिज़म तो एक ही है. और एक तरह से जो गेटवेज़ हैं जिसकी 3 शाखें हैं वो भी एक सिम्बॉलिकली दरख्त की ही अलामत कर सकता है. 3 स्टेजेस. तो सबसे पहले वो ट्री श्राइन के पास गए, उसके बाद मज़ीद आगे गए और जहाँ जहाँ घोड़ा जा रहा है वहाँ उनकी छतरी भी है. और ये सबसे मुझे दिलचस्प बात लगती है कि आखिरकार वो अपने पीपल के दरख्त के पास आते हैं और फिर यहाँ पे उनकी 2 पैरों के निशान हैं, कदमों के निशान हैं, जाने कि वो यहाँ पे बैठ गए हैं. और फिर घोड़ा जब वापस आता है तो छतरी मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि वो वहीं पे रह गए हैं, घोड़ा अकेला बहुत ही अफसोसदा वापस आ रहा है. और नीचे अशोक की कहानी दिखाई गई है जब वो बोध गाया, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने निर्वाण पाई, वहाँ पे बोध गाया के दरख्त के पास और उनकी छेतिया जो टेंपल है वहाँ पे आए हैं. तो यहाँ पे हाथी को पीछे छोड़ के अपने यहाँ पे सलाम करने आए हैं बोध गाया पे. तो ये बड़ा अच्छा ये भी एक मंजर है और दिखा रहे हैं जिस तरह से जितनी भी एंजेलिक बीइंग्स हैं वो भी इस मकाम पे आ गई हैं. नेक्स्ट.
फिर एक हम केव साइट भी देख लेते हैं। जिस तरह से हमने पहले भाजा देखा था 2nd सेंचुरी BC का, अब एक सदी बाद आगे चल के देखते हैं कि एक और उसी के बहुत करीब एक और केव साइट है बहुत मशहूर, जिसका नाम है कार्ले। देखिए वो भी बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट है, और उसकी भी एंट्रेंस पे वही अशोकन पिलर है जो कि कॉपी है अशोकन पिलर की, जो कि उन्होंने पत्थर में से ही गाड़ी हुई है, और वो बिल्कुल उसी की कॉपी कर रहे हैं। 4 शेर हैं, उनके ऊपर एक पहिया हुआ करता था। ये रिसेंट है, हिंदू टेम्पल है, इसका भूल जाएं, जो सफ़ेद है, लेकिन उसके पीछे फिर से हम उसी तरह से केव साइट जो है फिर से इमिटेट कर रही है लकड़ी की इमारतों को, जो कि फ्री स्टैंडिंग इमारत हुआ करती थी, उसी को इमिटेट कर रही है। उसी तरह की छेतियाँ है, वही हमें जो आजकल हमें बादशाही मस्जिद और इस तरह के ईवान और गेटवेज पे भी नज़र आते हैं ना, ये जो टीथ विच इज़ एक्चुअली ओरिजिनली एन इमिटेशन ऑफ वुडन बीम्स, वो अब अगर आप बादशाही मस्जिद या किसी मुगलई आर्किटेक्चर पे देखें तो उनकी यही फॉर्म को उन्होंने लोटस बड्स में बना दिया है, लेकिन चीज़ वही है, वही आर्चवे है, वही बीम्स हैं जो कि बाहर निकल रही हैं। तो ओरिजिनली कभी यानी हज़ारों साल पहले ये शक्ल जब ईजाद हुई थी तो वो लकड़ी की बिल्डिंग्स में ईजाद हुई थी, लेकिन फिर भी उसके आसार हमें आज तक मिलते हैं, जिस तरह से ये आर्चवे में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्रॉस सेक्शन है जिससे हमें समझ आती है कि यहाँ हो क्या रहा है। वंस अगेन इट्स अ कंप्लीट इमिटेशन ऑफ अ फ्री स्टैंडिंग वुडन बैरल वॉल्टेड एप्सिडल श्राइन, लेकिन क्योंकि गार में बनाया है इसकी कोई ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन वो इमिटेट कर रहे हैं। और इसके अंदर भी जिस तरह भाजा में था, इसके अंदर भी पीछे करके एप्स के अंदर स्टूपा है, और स्टूपा की बात भी हम ज़्यादा अभी गौर से करेंगे इसलिए क्योंकि अब हमें समझ आ रहा है कि स्टूपा जो है वो किस तरह से उसकी शक्ल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सदियों के साथ तब्दील होती जा रही है। स्टूपा जो है सबसे पहले तो एक गोल अंडे की शक्ल में नुमाया हुआ, और उसके इर्द गिर्द फिर दीवार थी और गेटवेज थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आती है कि स्टूपा की जो छतरियाँ थीं, सांची में तो हम बड़ी छोटी छोटी छतरियाँ देखते हैं, वो जो थीं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती हैं, और वो बड़ी होते होते इतनी ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाती हैं कि स्टूपा ख़ुद एक टावर की शेप इख्तियार करना शुरू हो जाता है। तो हमें कार्ले में जो एक स्टूपा नज़र आता है यहाँ पे, वो एक बड़ा अच्छा ट्रांजिस्टरी फेज़ है तारीख़ में बुद्धिज़्म की, जिसके अंदर वो एक अंडे से टावर में यानी डोम से टावर के अंदर तब्दील होना शुरू हो रहा है। और हम इसको आगे जाके गंधारा में देखेंगे कि जो किस तरह से वो मुकम्मल तौर पे टावर बन जाता है। आगे चलें, ये सामने से भी उसका मंज़र कि जिस तरह बिल्कुल, और इधर भी जो लकड़ियां हैं वो अभी तक बरकरार हैं, जो कि उन्होंने पूरे तने लेके उनको टेढ़ा मोड़ के लगाया हुआ है। वंस अगेन इमिटेटिंग द वुड, इतना सो मच सो दैट दे एक्चुअली यूज द वुड एंड दे स्टिक इट ऑन टू द रूफ। और इवन द पिलर्स, उसका भी कोई फंक्शन तो है नहीं। 2000 year old wood। कई जगहों पे रेनोवेट किया, कई लकड़ी के टुकड़े अभी तक वही हैं, और इसकी जो छतरी है वो भी लकड़ी की है, अभी तक बची हुई है, जो स्टूपा की छतरी है। आगे चलें। What does the wood symbolize? I'm sorry. The what? The wood. वुड, क्योंकि पुराने ज़माने में जितनी भी इमारत थी दीगर अदियान की, जितनी भी मुक़द्दस स्पेस थी वो सारी लकड़ी में बना करती थी। तो जब उनके पास इतना स्किल वगैरह आ गई कि वो पत्थर की इमारत बना सकते थे, वो फिर भी उसको मुक़द्दस बनाने के लिए वुडन स्ट्रक्चर ही को कॉपी करते थे, ताकि वो फिर भी सेक्रेट प्रीसिंक्ट फिर भी वैसे ही रहे। तो ये मतलब मकसद है। नेक्स्ट, फिर हमने ये इस बीच वाले फ्रीज को भूल जाएं, ये 6ठी या 7वीं सदी का है, तो इसको हम नहीं देख रहे। हम साइड पे जो एमरस कपल्स हैं, जो कपल्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। हमने, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी बड़े चलते चलते सरसरी तौर पे बात की थी मिठुन, यानी कि जो एमरस कपल्स होते हैं, नर और नारी के जो मिलाप का जो सिंबलाइज करते हैं। शुरू में तो बड़े फॉर्मल से थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि पहली सदी कबल ईस्वी में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इंटीमेट और गहरा हो गया है, और उनकी जो अक्कासी है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होना शुरू हो गई है। तो इन दोनों
इनको मिथुन कहते हैं, यानी कि amorous couples symbolizing union, and that union could be between man and God, between man and wife. It could be many many different symbols, but in this case जिस तरह yin yang की जो symbol है, जो divine feminine and divine male, और उसका जो आपस में जब मिलाप होता है तो फिर ही creation बाहर आती है, तो वो उसको symbolize essentially करते हैं। हमारे अंदर भी जिस तरह इंगला और पिंगला, गंगा जमुना, दो नदियाँ, बहुत सारी सिंबल्स हैं इसी चीज़ की, मेल और फीमेल की। तो इसके अंदर ये इंसानी सूरत लेके सामने नज़र आती हैं, जिसके अंदर दे बिकम मोर एंड मोर इंटीमेट एंड मोर क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, ये तो बैकग्राउंड था कि फर्स्ट सेंचुरी BC में क्या हो रहा था। अब हम आते हैं द फर्स्ट बिग मोमेंट, द नेक्स्ट बिग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ Indian architecture and art, ख़ास तौर पे the biggest moment in Buddhist art and architecture, which is the Kushan period. उसके जैसे कि पहले मैंने भी अर्ज़ किया कि कुशान दौर के दो मरकज़ थे, एक तो दिल्ली के पास मथुरा, और दूसरा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो आज पाकिस्तान है, टैक्सला वगैरह के रीजन में, और इवन इनटू अफगानिस्तान यानी गंधारा, वो दो सेंटर्स थे। और ये दो सेंटर्स साथ साथ चले, और इन दोनों के बड़े मुनफरिद और मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, क्योंकि जो बर्रे सग़ीर की गढ़ में हो रहा था मथुरा में, वो ज़्यादा लिंक करता है अपनी हिंदुस्तान की तारीख़ से, लेकिन जो चीज़ें गंधारा में हो रही थी वो एक तरह से ज़्यादा सरहद के करीब का इलाका है, इसलिए उसका जो ज़्यादा आसार नज़र आते हैं वो हैं यूरोप के साथ और ग्रीस के साथ और रोम के साथ। तो गंधारा आर्ट वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोविंशियल रोम, क्योंकि उसके ट्रेडिंग अलाइंसेस भी थी, और इवन किंगडम्स वगैरह की भी आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन थी। वेराज जो चीज़ें मथुरा में हो रही थी दिल्ली के पास, वो उसका ताल्लुक़ ज़्यादा अपनी ही पुरानी रवायात के साथ है। नेक्स्ट, पहुंच चुका था पहले, सिकंदर आज़म के ज़माने में से ही वो कनेक्शंस बन गए थे हेलेनिस्टिक पीरियड के, तो वही आर्ट फिर हमें गंधारा में भी नज़र आता है। बिल्कुल। तो द कुशान जो थे वो सेंट्रल एशियन लोग थे, शामनिस्टिक ट्रेडिशंस लेके आए थे, लेकिन साथ साथ फिर बुद्धिस्ट हो गए। और ये बर्रे सग़ीर की जो पॉलिटिकल तारीख़ है वो वैसे तो सेंट्रल एशियन ही तारीख़ है, क्योंकि जब से तारीख़ चल रही है अमूमन सेंट्रल एशियन लोग ही आते हैं और इसमें तब्दीली लाते हैं और एक तरह से इसकी नई ज़िंदगी इसके अंदर डालते हैं। यही हमने आर्यंस का भी देखा, जब हड़प्पा वाले लोग ख़त्म हुए और आर्यंस आए तो वो भी सेंट्रल एशिया से ही आए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वेव आई वो फिर से सेंट्रल एशिया से आए, कुशान। और उनकी तो राइटिंग भी चाइनीज़ टाइप, हाँ कुछ इलेजिबल सी है। और उन्होंने कनिष्का जो उनका मशहूर फाउंडिंग रूलर था, उसने फिर अपनी एक डेटिंग भी शुरू की, जिसको आज तक कोई समझ नहीं सका 100%, लेकिन लोगों के बीच में आपस में तनाज़ा है कि उसकी तारीख़ क्या होगी। तो मोस्ट प्रॉबली ही स्टार्टेड हिज रेन इन 78 AD, 78 AD के लगभग उसने हिंदुस्तान पे रूल करना शुरू किया। और क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए थे तो उन्होंने पहले गंधारा में अपना गढ़ बनाया, फिर दिल्ली के पास बनाया। और फिर जिस तरह हम देख रहे थे कि अशोका के बाद तितर बितर हो गई पूरी सल्तनत और रियासतें बन गई, लेकिन फिर तकरीबन 200 साल के बाद फिर से हिंदुस्तान में एक मुत्तहदा एक कौम ने आके उसके ऊपर रूल किया, और कुशान ने फिर से यूनाइट कर दिया काफ़ी हद तक नॉर्दर्न इंडिया को एटलीस्ट। तो जिसकी वजह से फिर से ट्रेड रूट्स जो थे, तजारत के जितने भी सिलसिले थे वो फिर से जारी हो गए। हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक अमन और सलामती भी आई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो जो चीज़ें मथुरा में बन रही थी वो फैली पूरे हिंदुस्तान में। और ट्रेड की वजह से सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से इवन चाइना एंड दूसरे इलाकों में भी बुद्धिज़्म फैला आहिस्ता आहिस्ता शुरू में। और हम पहले हम मथुरा पे फोकस करते हैं, जो कि
हिंदुस्तान के ज़्यादा सेंट्रल रीजन में है। और उसकी ख़ास बात यह है कि जिस तरह से अशोक के दौर में चुनार सैंडस्टोन था जो कि यूज़ होता था हर जगह, उसी तरह मथुरा में एक जगह है सीकरी जहाँ से पत्थर आता था और आता है। मुग़लों ने भी बहुत इस्तेमाल किया, आपको अभी तक इमारतों में नज़र आता है। तो हम यही देखते हैं कि जो मथुरा में चीज़ें बनी वो सीकरी सैंडस्टोन से बनी, और सीकरी सैंडस्टोन लाल पत्थर होता है जिसके सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते हैं, तो फ़ौरन पहचाना जाता है। और अभी भी जितनी भी दिल्ली वगैरह में, आगरा में मुग़लों की इमारतें बनी हैं वो सारी उसी से बनी हैं। वो वाइटिश था, उसकी पॉलिश होती थी। ये लाल है और वाइट स्पॉट्स के साथ है। जी जी एग्जैक्टली, हाँ वहीं पे फिर अकबर ने अपना शहर आबाद करने की नाकाम कोशिश की। सो द कुशाना era had a highly developed transportation system very similar to Ashok. But unlike the Mauryan times, there was a much more diverse patronage system. यानी सिर्फ बादशाह सलामत नहीं बनवा रहे थे, अवाम भी उतना हिस्सा ले रही थी इस सारे पेट्रनेज सिस्टम में। और अब तक मंक्स और नन्स जो थे यानी बुद्धिज़्म के, उनके पास भी बहुत क़ुव्वत और ताकत आ चुकी थी कि वो ख़ुद बुद्धा के बुद्धिज़्म के को फ़रोग़ कर सकें अपने आप से भी। And another important difference is the emergence of a common visual and symbolic language employed by various traditions. At this time, under the Kushans, we also see the emergence of Jain imagery and Hindu imagery along with Buddhism. Hinduism हम बाद में बात करेंगे तो इसलिए आज हम उसके पे जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ जैसे ही बुद्धा का इमेज सामने आ रहा होता है उसी वक्त हमें हिंदुइज्म में भी आइकनोग्राफी सामने आ रही होती है। यानी अब तक हिंदुइज्म में भी ज़्यादा आइडल्स थे ही नहीं, यानी कम तकरीबन 1500 साल 1000 साल बुद्धिज़्म में आइडल वर्शिप का नामो निशान नहीं था, वो अब जाके शुरू होता है। विच इज़ फैसिनेटिंग कि सारे रिलीजन्स में एक साथ ही एक ज़रूरत सामने आती है, जैसे कि हिंदुस्तान के लोगों में एकदम से एक साथ ये ज़रूरत आई। इसके अंदर बताऊँ जो कुमार स्वामी तजवीज़ करते हैं, तो कुमार स्वामी कहते हैं कि अगर हम वैदिक टाइम को देखें तो वो डिवाइड होता है अमूमन 4 हिस्सों में। सबसे पहली जो एज थी वो गोल्डन एज थी, उसके बाद सिल्वर एज आई, फिर ब्रॉन्ज एज आई, और फिर जिस एज में हम हैं काली युग, यानी कि अंधेरा ज़माना है, तारीकी। तो कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि एक एज से दूसरी एज में, जब हम शुरू की एजेस की बात करते हैं, गोल्डन एज या सिल्वर एज, तो उसके अंदर देवी और देवताओं की शक्ली सूरत की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी इंसानी जो फितरत है वो खुदाई फितरत के सांचे में पहले से ढली होती है। तो हमें किसी इंसान को देख के खुदा की याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि खुदा तो पहले दिल में मौजूद होता है। तो हमें तो बस थोड़ा सा जिक्र किया या थोड़ा सा याद किया और वो फितरत जो है इंसानी वो नमूदार हो गई, जिसको कहते हैं द पाथ ऑफ नॉलेज या जनान, मारुफत, जिसको हम अपने अरबी में सूफ़ी में तसव्वुफ़ में कहते हैं कि लगता है कि पहली सदी ईस्वी के लगभग एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया बर्रे सग़ीर की इंसानियत में, शायद पूरी दुनिया में आया, जिसके अंदर इंसान उस मारुफत की सतह से इश्क की सतह पे आ गया, यानी भक्ति, इन द सेंस के हमें एक तरह से वसीले की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हमारा जो विसाल और आगही और मारिफत थी हकीकत से, वो उसके अंदर एक दरार आ गई, एक बैरियर आ गया, एक हिजाब आ गया, एक वेल आ गया, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी ऐसी चीज़ें बनाने की जिसके थ्रू हम उसको हकीकत को याद कर सकें। तो कहते हैं कि वरना और क्या वजह होगी कि एक साथ एकदम से ही सारे जितने भी अदियान थे उन सबको ज़रूरत पड़ गई इन मूर्तियों की, इन देवताओं की इंसानी शक्ल में डालने की। उससे पहले तो थी नहीं ज़रूरत। तो कुछ ना कुछ शिफ्ट आया होगा इंसानियत में कि अगर हम वैदिक टाइम को देख के चलें तो शायद एक बड़ी कॉस्मिक एज ख़त्म हुई और एक दूसरी कॉस्मिक एज शुरू हुई, जो कि ज़ाहिर है इट वाज क्लोज़र टू द काली युग देन इट वाज टू द गोल्डन एज। तो इसलिए इंसान जैसे जैसे वक्त में चलता जाता है वो
तारीकी की तरफ ज़्यादा जाता है और खुदा के नूर से दूर होता जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैगम्बरों की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दीगर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है खुदा को याद करने की, तो इसलिए फिर ये शक्लें सामने आई। दैट्स वन रीज़न विच कुमार स्वामी के, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, जो उन्होंने कहा है वही कह रहा हूँ। आगे चलें, नहीं इसको देखते हैं पहले। तो ये एक पोर्ट्रेट है कनिष्का की, जो कि अलमशहूर रूलर थे कनिष्क, कुषाण पीरियड के। ये अनफॉर्चुनेटली सर के बग़ैर है, लेकिन फिर भी हमें ये पता चलता है कि जब हम इनकी कपड़े वगैरह देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेंट्रल एशियन थे, क्योंकि इन्होंने बड़े मोटे बूट पहने हुए हैं और इन्होंने एक बहुत मोटी ट्यूनिक पहनी हुई है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बर्रे सग़ीर में तो नहीं मिलेंगी, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। सो इट्स क्लियरली शोइंग दैट दीज वर फॉरेन रूलर्स हु वर कमिंग इनटू साउथ एशिया। लेकिन even within that brief period of time they were already getting Indianized, localized। और हमें वो localization के आसार कहाँ नज़र आते हैं? इस लोटस के फूल में, जो कि आपको और कहीं इस तरह से नज़र नहीं आता। और इधर जो उन्होंने मेस पकड़ा हुआ है उसकी भी बेस पे, हमें ये डिटेल नहीं मेरे पास, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे, ये एक्चुअली मगरमच्छ का मुंह है, फिर से वही मगर जो कि हमें पहले भी हम देख चुके हैं। तो these are all these elements which are local fused with a people who were foreigners, so they're getting local, becoming localized. Next. ये एक कनिष्का के जो आबाई जो रूलर्स थे, वीमा कैटफीसिस, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे जाके बुद्धा की फिगर देखेंगे उसके अंदर भी ही इज़ यूजली सिटिंग ऑन अ थ्रोन एंड इट्स यूजली अ लायन थ्रोन। तो इधर भी इस बादशाह को दिखाया हुआ है, कुषाण ज़माने के बादशाह को दिखाया हुआ है जो कि एक लायन थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं, जस्ट टू शो सिमिलैरिटीज़ एंड कंटिन्यूटीज़। आगे चलें, अगर कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। आगे चलें, फिर हम आते हैं द ओरिजिन ऑफ द बुद्धा इमेज, कहाँ से आया? इस पे बहुत डिबेट चली है और 100-150 साल से चल रही है। जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी यहाँ पे तो उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया, काफ़ी ज़्यादा काम किया इसी बात पे कि ओरिजिन ऑफ द बुद्धा इमेज कहाँ से आई। उन्होंने ज़्यादा गंधारा को फ़रोग़ दी, उसकी पॉलिटिक्स भी थी क्योंकि गंधारा वाज क्लोजर टू यूरोपियन स्टाइल, सो द ब्रिटिश वांटेड टू शो दैट एवरीथिंग दैट वाज मेड इन इंडिया had to come from foreign influence। तो कहते हैं कि लोकली तो कुछ नहीं हो सकता था, और उनके लिए गंधारा जो था वो सबूत था कि देखो सब कुछ जो है वो गंधारा से आया, गंधारा रोम से आया है, तो देख लें जी। तो लेकिन रोमनस्क, इट्स प्रोविंशियल रोम कहते हैं। अर्लियर ग्रीक इन्फ्लुएंस पे वो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस तब्दील हो गया, रोमन पे प्रोविंशियल रोम में आ गया। लेकिन फिर कुमार स्वामी उसी ज़माने में आए जिनका मकसद था भी यही कि अंग्रेज़ी जो एक तरह से ब्रेन वॉशिंग चल रही थी इसके अगेंस्ट कुछ अपनी लोकल फ़िलासफ़ीज़ को आगे लाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी ही तारीख़ को देखें, ख़ास तौर पे इसी इलाके की तारीख़ को देखें, तो हमें बुद्धा की जो शक्ल है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धाज, और उल्टे हाथ की साइड पे आप देख रहे हैं एक यक्षा जो कि शायद दूसरी या पहली सेंचुरी BC का हो, और ये कुषाण पीरियड का है, सो दिस वुड बी समवेयर इन द 1st century AD। इज़ एक्चुअली डेटेड, इनकी तारीख़ है नीचे पीछे इंस्क्रिप्शन पे, तो इज़ डेटेड एज 81 AD, यानी कुषाण पीरियड कनिष्का के ज़माने का। तो कुमार स्वामी ने ये पेश किया नज़रिया कि जो सबसे शुरू के जो बुद्धा इमेजेस थे वो डायरेक्टली यक्षा के फिगर्स में से आए, और उन्होंने ये कंपैरिजन भी किया कि अगर हम 100 या 200 साल पुराने यक्षा फिगर्स को देखें, जो कि हमने पिछली क्लास में देखे थे, इंडिपेंडेंट डेटीज़, वही शक्ल सूरत हमें नज़र आती है बुद्धा में। और वो क्या है कि उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल इवनली डिवाइडेड खड़ा है, स्टेबल, और आपको सामने से देख रहा है। उसकी शक्ल जो है वो बहुत काफ़ी जिस तरह चांद जैसा चेहरा है, गोल है, और वो स्माइल कर रहा है, हंसमुख चेहरा है। उसकी अमूमन आंखें खुली होती हैं और आपकी तरफ देख रहा होता है सीधा। उसका जो जेस्चर्स हैं हाथों के वो भी यक्षे वाले ही हैं।
फ़र्क सिर्फ आइकनोग्राफी में है कि यक्षा ने अमूमन वो फ्लाई विस्क पकड़ी होती है झाड़ने के लिए मक्खियाँ, और दूसरे हाथ में उसने अमूमन एक थैला पकड़ा होता है सोने का। बुधा क्योंकि ज़ाहिर है वर्ल्डली अटैचमेंट से तो दूर था, तो उसने फ्लाई विस्क के बजाय अमूमन, हम देखेंगे आगे जाके भी, सीधे हाथ से उसने अभाया मुद्रा का निशान दिया होता है, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम फेयर। और उल्टे हाथ में उसने कोई भी चीज़ पकड़ी नहीं हुई, सिर्फ अपना जो रोब है उसको सराहा हुआ है। लेकिन बाकी सब चीज़ें, जिस तरह से उन्होंने अपनी धोती बांधी हुई है वो भी वैसे ही है, जिस तरह से उनके पैर हैं वह भी वैसे ही है, और जिस तरह से उनकी फ्रंटैलिटी वो भी वैसे ही है। थोड़े से पतले हो गए हैं बुधा, और जो कपड़े हैं थोड़े से तब्दील हो गए हैं, क्योंकि यक्षास वर ऑफन पोर्ट्रेड एज प्रिंसेस और किंग्स, तो उन्होंने बहुत सारे हीरे जवाहरात वगैरह पहने होते थे। बुधा ने कुछ भी नहीं ऐसा पहना हुआ, उन्होंने सिर्फ अपना रोब्स पहने हुए, वो भी एक कंधा नंगा छोड़ के, जिस तरह से आज भी पहनते हैं बुद्धिस्ट मंक्स। तो इसलिए इस तहत उन्होंने कहा कि जो बुधा का जो शुरू में फिगर्स जो सामने आए पहली बार, दे वर नॉट कमिंग फ्रॉम यूरोपियन या ग्रीक या रोमन इन्फ्लुएंसेस, they were coming directly from local influences. So this yaksha figure on the left is also made in Sikri sandstone, as in from the same region. So but just 200 years before. So there's a connection stylistic. Next. ये भी उसी ज़माने का है, कुषाण पीरियड का। इनका नाम है, पिछले वाले का नाम था बल्ला बुधा, क्योंकि ये एक मंक बल्ला ने बनवाया था अपने लिए, अपनी मॉनेस्ट्री के लिए बनवाया था, मथुरा में बनवाया था, और फिर उसको सारनाथ ले गए थे, वहाँ पे मिला था। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हमें यहाँ नज़र आती है कि उनके पैरों के बीच में शेर है, वंस अगेन सिंबल ऑफ द बुधा। फिर अगर हम दूसरा बुधा उसी ज़माने का एक और मशहूर देखें जिनका नाम है कतरा बुधा, वो भी उसी ज़माने का है, 1st सेंचुरी AD का, मथुरा से ही। और यहाँ पे आप पत्थर भी देख सकते हैं कि लाल पत्थर है और उसके सफ़ेद धब्बे पड़े हुए हैं, तो इमीडिएटली रिकग्नाइजेबल। क्या बात है, सीक्री सैंडस्टोन। ये भी इसने जो लास्ट टाइम आपसे नहीं थे, सब थे। ये वही सांस लेने वाली जो बात फील हो रहा है कि उसमें सांस आ रही है, इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने बनाया पेट, जैसे कि अभी वो उन्होंने सांस ली हुई है। और यहाँ पे हमें पहली बार नज़र आते हैं कि जो जिनको कहते हैं ना लक्षण, बुधा के लक्षण यानी एट्रीब्यूट्स, उनको भी सूरती शक्ल कैसे दी गई है। पहले तो हमें वो सारे एनाइकॉनिक सिंबल्स में नज़र आ रहे थे, पहिया, छतरी। अब लफ्ज़ जानते ना, हमारे लक्षण ठीक नहीं है। हाँ, तो उनके पूरे टेक्स्ट में पता नहीं कितने 72 के 78 इस तरह से लक्षण हैं जो कि हमेशा डालने होते हैं। तो उनमें से शेर है, पहिया है, ये है, वो है। तो इस यहाँ पे अब हमें फॉर द फर्स्ट टाइम इंसानी शक्ल में वो नज़र आना शुरू हैं, यानी कि उनके जो कान हैं वो लटके होने चाहिए। क्यों लटके और बड़े होने चाहिए? क्योंकि पहले वो महाराजा थे, और जब वो ख़ुद राजा थे तो उन्होंने मोटे मोटे बालियाँ पहनी होती थी, तो जब वो उतारी तो कान लटके रह गए, तो इसलिए फिर हमें उनके हमेशा कान लटके हुए नज़र आते हैं। एक और अलामत गौतम बुद्ध की वो ये है कि उनके सर पे उशनीश का निशान होना चाहिए, विच इज़ द क्रेनियल बम्प। उसकी भी उशनीश ये है जो कि बिंदिया जिसको कहते हैं, और ओढ़ना ये है जो सर के ऊपर होता है। तो दीज आर द टू। एक तो ये बिंदिया जिसको कहते हैं जो कि तीसरी आँख की मलामत करता है, वो तो हमें अलामत करता है, वो तो हमें सारे रिलीजन्स में नज़र आता है हिंदुस्तान में। तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तीसरी आँख भवों के बीच में, और उसके ऊपर ये क्रेनियल बम्प है जो कि इसकी बहुत सारी कहानी है कि क्यों हुआ, क्या आया, लेकिन यहाँ पे उनका एक बेसिकली एक बाल जो था वो गोल होके, तो जब उनको निर्वाण हासिल हुई उनके सारे बाल झड़ गए और फिर नए बाल निकले जो कि बहुत हल्के हल्के, जैसे बेबी के बाल नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट गोल गोल। तो अक्सर आप पेंटिंग में भी और स्कल्पचर्स में भी गौर से देखें तो उनके बाल बने होते हैं हल्के हल्के आगे जाके। तो वो उनमें से कहते हैं कि एक जो है वो निशानी है उनकी एक तरह से निर्वाण की, कि यहाँ पे वो ये सबसे जो ज़रूरी चक्रा होता है बुद्धिज़्म की योगिक एक्सरसाइज में,
वो ये वाला चक्र होता है। 1000 petal lotus चक्र। क्योंकि यहाँ से ही आपको मोक्ष या निर्वाण हासिल होता है, कंप्लीट डिलीवरेंस। तो इस ये जो हमेशा आपको यहाँ पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेनियल बम्प, तो वो उसी की इलामत करता है। डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, और क्या है तो बाल। हाँ, तुम्हारे कहने से लग रहा है जैसे घूमड़ा निकला। वो फिर एग्जैजरेट होते होते घूमड़ा बन गया। नहीं, ये तो अंग्रेजों ने कहा ना। नहीं, नजर भी तो आ रहा है क्या बाल है कि घूमड़ा? ये तो झूठ। बाल कहते हैं कि बाल है, लेकिन फिर वो एग्जैजरेट होते होते स्कल्पचर में ज़्यादा बड़ा बन गया, तो ठीक है। तो इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ स्टूपा लाइक फॉर्म ऑन टॉप। तो और दूसरे लक्षणों में से होता है कि पैरों में भी, पैरों के भी तलों में ज़रूर कोई पहिया या क्रिएशन सिंबलिज्म होती है। योगी भी इस तरह बिल्कुल, वो शिव योगी भी तो यूं वो भी ऐसी बात मानते हैं बिल्कुल। और ये भी सब बड़े योगिक किस्म की बॉडी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो जेस्चर है इनका, यहाँ पे वो है डिबेट का। जब आप अपने हाथ यहाँ मारते हैं तो यानी कि आपने एक पॉइंट मारा है, और फिर वो बता रहे हैं कि तो पॉइंट मार रहे हैं इस वक्त, दैट्स व्हाट इट मींस, दैट इज मेकिंग अ पॉइंट। और ये राइट पे इसलिए दिखाया है क्योंकि ये रिलीफ में है, लेकिन इतनी खूबसूरत और नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप भूल जाते हैं कि ये रिलीफ, इट्स अ डीप रिलीफ, इट्स नॉट अ फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर। The other symbols over here that you see are of course the lions. तो हमें इमेजिन करना है कि 4 lions हैं। This is the lion throne that he's sitting on. सिंहासन कहते हैं ना। सिंहासन। सिंह यानी कि सिन्हा। सिंह शेर। आसन बैठने की जगह। तो जो तख्त होते हैं उनको सिंहासन भी कहते हैं। राज सिंहासन डावा डोल, बड़ी जबरदस्त नज़म है। तो हाँ, ये उस पे ही बैठे हुए हैं। तो 4 पायों पे 4 शेर। ये ना, ये 4 आर्कएंजल्स को भी डिपिक्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। द होल ऑफ क्रिएशन, कॉस्मिक सिंबल। एसेंशियली तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। शेर जो है, जी हाँ। अल्टीमेटली तो डिवाइन गॉड्स थ्रोन हमारे यहाँ भी है ना, कॉस्मिक सिंबल। अर्श। रूलर सिट्स ऑन द अर्श व्हिच इज सपोर्टेड बाय द 4 आर्कएंजल्स। यहाँ पे 4 पिलर्स। the Buddha represents divinity, the throne is the arsh, the kursi, and then these 4 lions are the 4 angels. और उसके पीछे दरख्त हमारे यहाँ भी जो अल्टीमेट लोट ट्री है ना, जब मेराज हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें भी दरख्त वाज दी डिवाइन स्पिरिट का सिंबल है ना, क्योंकि वो अर्श को जमीन से जोड़ता है, स्पिरिट जोड़ती है, वरना ये सब चीजें खत्म हो जाती। वही जो हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि उसका सिंबल क्या है, एक्सेस दैट कनेक्ट्स। वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा मेराज में, उसी की शबी यहाँ पे भी नजर आती है। अच्छा कनेक्शन है, बहुत क्लियर कनेक्शन है। और इधर वंस अगेन यू सी पीपल का दरख्त, और फिर उनके साथ जो है वो 2 यक्षे हैं जो कि अब बिल्कुल अटेंडेंट्स बन चुके हैं, यानी वही से आप लोग कुछ थे ना चंद हज़रात। तो हाँ, जितना हम दिन देखते जाएं और चीज़ें नज़र आती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब फिर ये एंजेलिक बीइंग हैं जो कि वैसी नज़र आती हैं। साइज क्या है? छोटा सा, इतना सा है, लेकिन वही है, मेरे भी उस्ताद कहा करते थे कि इसको वैसे देखें तो लगता है कि पता नहीं 6 फुट का होगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंस बहुत है। जैसे कि बाला बुद्धा जो था वो बैठ गया हो, यानी कि द सेम बिग बल्कि बुद्धा, बहुत इसमें एक रोब है, एक एनर्जी है, एक जान है, ताकत है, वही चीज़ इसमें भी नज़र आ रही है। इनमें बहुत एक बिग हल्की पावर। तो इसीलिए तो कुमार स्वामी कहते हैं कि ये ओरिजिनली यक्षा और यक्षाओं की जिस तरह से अलामत की जाती थी, वही फिर बुद्धा के लिए इस्तेमाल की गई। यक्षों में भी ये वही चीज़ थी, बिकॉज दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्रोलिंग नेचर, तो इनमें बहुत जज्बा और जान थी। अभव जो अभय जो ये सिंबल, अभय मुद्रा, हाँ, तो ये ना कि आपको ही इज गिविंग यू कि भाई ये मेरा प्रोटेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे बचा के रखेगा। ये हमने भी तो देखना इंसान की नज़र से कि वो अपने कैसे देख रहे हैं। लेकिन अब हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता किस तरह उसमें तब्दीली आई, किस तरह बुद्धा की जो शक्ल थी वो एक बहुत ही जाबर, एक बहुत ही तंदुरुस्त और तवाना में आदमी से तब्दील होके एक लड़के की एक ज़्यादा नफीस और नाजुक से लड़के की सूरत इख्तियार की आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। हाउ डिड इट चेंज, वो हम देखेंगे आज, उसी पे फोकस है आज।
साथ साथ अब हम जिस तरह यक्षियों की बात कर रहे हैं कि यक्षियों का किरदार जो बड़ा ज़रूरी है बुद्धिज़्म में, इवन दो बुद्धिज़्म इटसेल्फ डजंट टॉक अबाउट दैट इन देयर ओन टेक्स्ट्स, बट इन द लैंग्वेज of representation, the Yakshi figure is extremely important in both Jain, Buddhist and Hindu architecture and art. तो ये एक और साइट है भूतेश्वर जो कि पंजाब के करीब ही है, यानी हमारे ख़त्ते से ज़्यादा करीब है, मेरे ख्याल से इंडियन पंजाब से ही है. वंस अगेन स्टूपा और उसके इर्द गिर्द वेदिका. ये वेदिका की रेलिंग्स जो बची हैं वो सामने आ रही हैं कि जब इंसान या जो डिवोटी है वो स्टूपा की तरफ, दीवार की तरफ जा रहा होता है तो उनको सबसे पहले ये उनका इस्तेकबाल कर रही हैं. तो अक्सर सवाल यही उठता है, बहुत लोगों ने उठाया कि इस तरह की कोर्टिजन लाइक ख़वातीन का स्टूपा और इस तरह की मुक़द्दस बिल्डिंग में क्या काम. तो उसके बहुत सवाल उठे हैं, बहुत सारी तजावीज़ भी सामने आई हैं. फिर से कुमार स्वामी की मैं अमूमन बात पर ज़्यादा गौर करता हूँ, तो उनने भी अच्छे ही एक नज़रिया पेश किया है. तो इस ज़माने में यानी कुशान पीरियड में आपको कोर्टिजन लाइक ख़वातीन विच आर यक्षीज़, हमें पता है कि ये फिर भी यक्षीज़ हैं क्योंकि उन्हें वो गणों यानी ये ड्वार्व्स के ऊपर खड़ी हुई हैं, यानी कि दे नॉट एवरीडे ह्यूमन बीइंग्स, दे आर डिवाइन ह्यूमन बीइंग्स. व्हेनेवर यू सी समवन स्टैंडिंग ऑन अ व्हीकल, चाहे वो जानवर हो इंसान हो, जो यानी कि इट्स अ डिवाइन, इट्स नॉट अ ह्यूमन. तो दे आर ऑल शोन in everyday activities. Most of them are shown either putting on their clothes or putting on makeup or looking at themselves in a mirror. ये सारे मुद्रे हैं जिनका मुद्रा होता है जेस्चर, जिनका जिक्र है बहुत सारी टेक्स्ट्स में, हिंदू टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, कि एक आइडियल वुमन को क्या करना चाहिए, एक आइडियल मैन को क्या करना चाहिए. वो सारी टेक्स्ट में उनका जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पे उनका क्या फंक्शन है. कुमार स्वामी वैनिटी. तो कुमार स्वामी का कहना ये है वंस अगेन कि हकीकत के दो पहलू हैं, एक तंज़ीह वाला पहलू है और एक तशबीह वाला पहलू है. एक एब्सोल्यूट या बियॉन्ड बीइंग शून्य वाला पहलू है और दूसरा कॉस्मिक पहलू है. और वो कहते हैं कि अगर हम उस लफ्ज़ कॉस्मेटिक्स की रूट्स में देखें तो उसका कॉस्मिक और कॉस्मेटिक का एक ही रूट है. इट मीन्स दैट गॉड इज़ कंप्लीटिंग द क्रिएशन. इट इज़ पुटिंग द फाइनल टचेस ऑफ परफेक्शन ऑन द क्रिएशन, which is being represented through these courtesan like women putting on makeup and perfecting themselves. So they become these representations of earth, ya dharti ma, या the feminine, divine feminine, who is now perfecting itself by putting on the girdle, putting on the makeup, and then doing all those sort of activities. तो वो उनका ये कहना है कि इसीलिए वो सिर्फ बाहर नज़र आती हैं, स्टूपा के अंदर कभी नज़र नहीं आती, सिर्फ दीवार पे नज़र आती हैं. कभी भी स्टूपा की अपनी दीवार में स्टूपा की सरफेस पे नज़र नहीं आएंगी. सो इसका भी शायद हो कुछ मकसद, सिम्बॉलिकली to represent very worldly looking courtesans, but then they have to have a symbolic function, otherwise why are they in the stupa, the most sacred place for Buddhists. So according to Kumar Swami, they are representing the world in its creative aspect and the perfection of creation. आपका क्या ख्याल है? मुझे अभी याद नहीं है. यक्षीज एग्जैक्टली पैरेलल हमारे वो परियों से नहीं होंगी. साइकिक वर्ल्ड के बीइंग्स है ना, rather than spiritual but positive साइक. हाँ बिल्कुल. ये कायनात में कहते हैं कि पॉजिटिव, हम अब तो बहुत ही फिजिकल उस तरह हो गए ना हमारी परसेप्शन. पुराने लोगों को तो कायनात में ये सारे चीज़ें अभी भी हैं, हमें नहीं पता चलता. और ख़ुसूसन दरख्तों और पौधों के साथ ये जो बीइंग्स है ना आलम बरज़ख की, वो भी कायनात है, उनका हिस्सा हम लोगों को तो नज़र आता था. उन्होंने बेसिकली मुझे लगता है कि ये कायनात दिखाई और क्या, और ये हाँ कॉस्मोस में ये पॉजिटिव या खूबसूरत परियां जैसे हम कहते हैं, जिन और परियां और तरह तरह की, वो भी हो सकता है वल्लाह अल्लाह. और क्या, दैट्स व्हाई कॉस्मोस ही की रिप्रेजेंटेशन. उसको डिवाइन कहना, ये अंग्रेजों ने तो हर चीज़ का जो है ना सुप्रा ह्यूमन सत्यानाश ही कर. यक्षी अगर इंडियन कॉस्मोलॉजी में मुझे जरूरी है. आपको याद है
इट्स इंटरमीडियरी भी है। वही ना, इट मेक सेंस। इसलिए वो गेटवे भी इंटरमीडियरी है ना, इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान आलम बरज़खी तो आता है। ये गेटवे सारे बरज़खी फिर एलिमेंट्स आएंगे, ऊपर के हिस्सों में रूहानी आएंगे, आई गेस। इसलिए स्टूपा हमेशा खाली होता है, क्योंकि वो वाकई डिवाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो टेंपल में भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा याद है अपने मास्टर्स से, टेंपल में भी ये है कि उसका जो बाहर है वो एक्सप्रेशन है, कायनात है। उसके लोअर पोर्शन इस दुनिया से, बीच का हिस्सा बरज़खी है, ऊपर फिर हेवंस है, मगर वो भी अल्लाह के हवाले से तो वो आउटसाइड ही है ना, हेवंस भी, तो अंदर कुछ भी नहीं होता। तो उसमें केव का सिंबलिज्म है एक तरह से, कि माउंटेन विच इज द कॉस्मोस, हकीकत उसके अंदर है। तो वो गॉड जो है वो अंदर है ना, गर्भगृह में, विच इज द केव सिंबलिज्म भी, माउंटेन सिंबलिज्म भी, और इनसाइड इज द फॉर्मलेस एंड आउटसाइड इज द फॉर्म इन मल्टीपल डेज़लमेंट। टेंपल भरे होते हैं ऐसे करके ना, जैसे खुदा का एक तरह से डेज़लिंग डिस्प्ले है कायनात में ना। इधर भी यही ऑल इट्स लेवल्स, इसमें भी वही लग रहा है जो इसका नहीं है ओवरऑल कह लो। तो यहाँ पढ़ देता हूँ कि कुमारस्वामी says that such depictions are an act of cosmic completion and part of creational symbolism. He says that cosmos and cosmetics have the same root. The yakshis are manifesting ideas of creating and maintaining order. गुड, अच्छा पॉइंट। कोई सवाल इस मौजू पे, इससे पहले कि हम गंधारा पे चलें? ये जो स्टूपा है ये सॉलिड होते हैं, जैसे दे हैव स्पेस इनसाइड, अंदर उसके अंदर तो जाने की जगह नहीं होती, सिर्फ एक बीच में शाफ्ट होती है खाली, जहाँ पे उन्होंने रेलिक्स अंदर डाले होते हैं। उसके अलावा तो सॉलिड ही होता है गालिबन, ईंटों का बना होता है। अक्सर तो ऐसे है कि जिस तरह हमने सांची स्तूपा देखा, उसकी पहली फॉर्म शक्ल जो थी वो अशोक के ज़माने की थी, 3rd सेंचुरी BC, तो वो छोटा सा था। फिर 1st सेंचुरी BC में उसको उसके ऊपर उन्होंने एक और डोम बना के मज़ीद बड़ा कर दिया। तख्त भाई में बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही स्तूपा है, उसमें यू कैन, क्योंकि फुट गए 3 लेयर्स नज़र आती हैं, अंदर पुरानी है, ऊपर फिर उससे नहीं है उसके ऊपर। और अमूमन उसके बिल्कुल सबसे शुरू के बीच में जो तबर्रुकात थे वो फिर होते थे। वो फिर लोगों ने बाद में चोरों वोरों ने, अंग्रेज़ों ने, चोर एक ही बात, उन्होंने फिर ऊपर से जाके शाखों के अंदर जाके फिर सारे जो तबर्रुकात थे चुरा लिए। फिर आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब पठान आप समझ सकते हैं कि इस तरह की हरकत शायद नहीं करते होंगे, अब तो करते होंगे, मगर जो तख्त बहाई है वो अब कितने 2000 साल पुराना है, उसके फर्श पे लैपिस लजूरी लगा हुआ है, वो अभी तक लगा। किसी ने ये पंजाब लाजवर्द कार्ड कोड के ले जाते हैं, लाजवर्द मुझे ऐसे ब्लू कलर के पत्थर नहीं होते, बहुत महंगा होता है। एक टुकड़ा है मेरे पास, बस कहाँ से आया? वो टूटा हुआ था, हमने उठा पठानों का कह रहे खुद उठा के ले आए। मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। तो चले फिर आगे चलें, गंधारा पे आ जाते हैं। गंधारा इस खित्ते में, हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न खित्ते में है। तारीख़ के हिसाब से बुद्धा ख़ुद तो कभी गंधारा के रीजन में नहीं गए, लेकिन जो मैथोलॉजीज़ मिलती हैं उसके तहत हमें कहानियाँ मिलती हैं जिसके अंदर बुद्धा ने अपने आप को एक तरह से बहुत सारे सेल्स में तकसीम कर दिया, और वो हर जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने सैर सफ़र किया। और हम मान भी सकते हैं कि हमारे दिन में भी जो बुज़ुर्ग तो करते रहे, तो उनमें से एक बड़ी मुक़द्दस जगह थी वो गंधारा बन गई, कि जहाँ पे लोग कहानी के हिसाब उसमें कहते हैं मैथोलॉजिकली के आए थे बुद्धा, लेकिन हिस्टोरिकली फिजिकली नहीं आए थे, उन्होंने सैर की थी उस तरह से। हज़रत मियां मीर साहब का भी ज़रा शुक्र है लिखा है कि वो भी गायब हो जाते थे रात में, उनका सीक्रेट था मक्का मदीना घूम के। तो बहुत जल्द तारीख़ में गंधारा जो था, ये जो इलाका है, वो एक तरह से सेकंड मोस्ट सेक्रेड साइट ऑफ बुद्धिज़्म बन गया। अच्छा। इसी कुशान पीरियड में, वरना तो यही था, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाज द सेक्रेड मोस्ट साइट जहाँ पे हिस्टोरिकल बुद्धा पाए जाते हैं। लेकिन फिर बहुत जल्द 1st सेंचुरी AD के बाद गंधारा बन गया,
और वहीं पे फिर हमें टैक्सला में आज भी नज़र आती हैं जो आसार। बैक्टीरिया नाम बड़ा। बैक्टीरिया इज़ पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल रोमन एम्पायर जो कि अफगानिस्तान है आज। इवन अशोका के टाइम पे भी वो ऊपर साइड पे अशोका ने भी, वो अशोका तो यहाँ तक अफगानिस्तान तक चला गया था। तो टैक्सला जो कि मरकज़ था उसका, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी थी, टेम्पल और मॉनेस्ट्रीज़ भी थी। तो और वो इसलिए इम्पोर्टेंट था, एक तो खैर मुक़द्दस मकाम था ही था, लेकिन क्योंकि इस ज़माने में जो तजारत थी पूरी दुनिया में एक तरह से होना शुरू हो गई थी अल मशहूर सिल्क रोड की वजह से। दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी व्हेन द सिल्क रोड वाज कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। तो सिल्क रोड दिखाई जो डॉट, हाँ और क्या, ये पूरी सिल्क रोड है जो कि फिर फाइनली ओशियाना और इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे इसलिए जहाँ पे सिल्क रोड बहुत सारी जगहों में मिलती है वो गंधारा का मरकज़ भी था, यानी कि बहुत सारे लोग दूर दूर के इलाकों से आके यहाँ पे आते थे। और जैसे यही कहते हैं कि जो फर्स्ट थिंग दैट ट्रैवलर्स सॉ वाज गंधारा कमिंग इनटू इंडिया एंड द लास्ट थिंग दैट दे सॉ व्हाइल लीविंग वाज गंधारा, which is why Gandhara became one of the most important centers through which Buddhist style and iconography spread to all parts of the Buddhist world. Teachings तो सबसे पहले फैली, manuscripts और texts वगैरह चाइना तक वो ही लेके गए ना बुद्ध। मंक्स चाइना तक ले गए, फिर चाइना में फैला, फिर चाइनीज़ मंक्स आए, वो फिर चाइना से मंक्स आते थे हिंदुस्तान, तो गंधारा रुकते थे, यहाँ पंजाब में रुकते थे, यहीं से सीख के जाते थे। वो जो मशहूर जो ट्रैवलर्स मंक्स आए हैं चाइना से, वो तो जिक्र करते हैं पंजाब के सियालकोट गए, तो तकसीला गए, तो हर जगह हो क्या है, स्तूपे देखे उन्होंने, कहाँ उन्होंने तो एक स्तूपा लिखा हुआ है। पंजाब में तो उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा था, आज हम भूल गए। अब दोबारा आ गए हैं, लेकिन उनको कोई बुद्धिज़्म वगैरह से शायद दीन और ईमान से कुछ खास लगाव नहीं, पैसे से ज़्यादा है। वो कन्फ्यूशियस को दोबारा से वैसे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने यहाँ कर रहे हैं, हमारे पता नहीं क्या होगा, हम भी फिर उसी के आगे चल जाएंगे, आगे चलें। तो ये तख्तेबाही का ऊपर से वही है, डिफरेंट एंगल। तख्तेबाही जो मर्दान बहुत बड़ी, वही जो पहले शायद हॉल होता था, यहाँ जमा होते थे। आप गए थे वहाँ से? हम सोच रहे हैं कि अभी जो हमारा अगले से, और फिर छोटे छोटे सेल्स हैं मंक्स के, जहाँ पे वो बैठ के अपनी जिक्र वगैरह करते थे। लोग कहते हैं कि अभी तक लगता है मंत्रों की आवाज़ आ रही है, वाह, इतना चार्ज है, दिन रात। सेंसिटिव लोग ही हमने सुनी सुनाई है। और इनका यही तरीका होता था, चाहे वो भाजा हो, कारले हो या गंधारा के ये जगह हो तख्तेबाही, कि अगर मेन सिल्क रोड वहाँ जा रही है तो वो उसके चंद किलोमीटर दूर ही बनाते थे अपनी जगह, बिल्कुल उसके साथ नहीं बनाते थे, ताकि लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके, जिद्दोजहद करके, और सुकून के लिए भी बनाते थे। खानका है, लेकिन करीब इट वाज क्लोज इनफ के ट्रैवल में आसानी हो। भरी पड़ी है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें तो एक दिख रहा है ना इस तरह साइड, इट्स अमेजिंग। और आर्किटेक्चर तो शाह साहब, मैं समझता हूँ कि हर आर्किटेक्चर स्टूडेंट को यहाँ जाना चाहिए। सो इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर, देखने को कंडर है, मगर डिटेलिंग वगैरह देखे ना, प्लान तो पता चल जाता है ना कैसे बना था। बहुत फाइन। हिस्ट्री बताओ साहब, तो और ज़्यादा अब जाएंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो बागराम क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में जो जगह है बागराम, हाँ वो तो कैप्टा। बहरहाल बागराम में एक गंधारा साइट थी जो कि एक्सकवेट की, तो वहाँ से उनको एक संदूक मिला जिसके अंदर बहुत सारी रेलिक्वरीज और बहुत सारी मुक़द्दस चीज़ें थीं। तो वो मैं सोचा दिखा दूँ कि किस तरह से होती थी। एक तो है मशहूर बीमारान रेलिक्वरी, जिसके अंदर बुद्धा या किसी औलिया कराम के उनके खाक होगी या उस तरह दांत बाल उस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो तो नहीं बची, लेकिन ये सोने का रेलिक्वरी बच गई है, जिसके अंदर हमें बुद्धा नज़र आते हैं बहुत ही हेलेनिस्टिक स्टाइल में, और फिर 2 बोधिसत्वास उनके इर्द गिर्द हैं। और वहीं से एक बड़ी अच्छी आइवरी की हाथी दांत की बनी हुई का डब्बा भी नज़र मिला था। गंधारा से मिला?
ये गंधारा की एक साइट है अफ़गानिस्तान में, बाग्राम के करीब, वहाँ से उन्हें अब पता नहीं कहाँ है। ये अच्छा सवाल किया आपने। वहीं होगी और कहाँ होगी मुझे नहीं पता ऐसे। ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत है गंधारा। तो मज़े की बात ये है कि ये इसमें तो बहुत ज़्यादा रोमन और हेलेनिस्टिक आसार नज़र आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल ये मगर चैतिया, ये चेतिया आर्ट है। ये बात आपने अच्छी कही, बिल्कुल बिल्कुल आर्किटेक्चर। लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा लोकल हिंदुस्तानी स्टाइल नज़र आता है, जिस तरह से फिगर्स बने हैं बिल्कुल लोकल हैं। हाँ। तो इसमें तजारत का भी असर नज़र आते हैं कि एक लकड़ी हाथी दांत की चीज़ जो कि शायद ईस्ट इंडिया में बनी हो, वो फैल पहुँचते पहुँचते अफगानिस्तान चली गई। बॉर्डर फर्क है मगर ग्रीक है शायद, पता नहीं, मुश्किल ही है जानना। चलें अब यहाँ पे अब हम आते हैं शाहजी की ढेरी, जो कि पेशावर के करीब है। वहाँ कहना है, सुनने में आया है कि कनिष्क ने एक बहुत ही बड़ा स्टूपा बनवाया था। उसका हम साइज़ देख सकते हैं, इंसान अगर इतना सा है तो स्टूपा, मतलब इससे बड़ा शायद स्टूपा कहीं ना होता अगर ये अभी तक बरकरार रहता, गिरा गया शायद। हमें सिर्फ उसके आसार एक तो टेक्स्ट्स के थ्रू नज़र आते हैं जो मंक्स ने ट्रैवल किया, लिखा। दूसरा क्योंकि वो ढेरी थी उसके अंदर भी आसार थे, तो उसके हिसाब से एक आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर उसका इतना को बड़ा तो वहाँ पे स्वात वैली में है वैसे। हाँ, इतने बड़े हैं, बड़े खूबसूरत तरीन आर्किटेक्चर। और दूसरी चीज़ जिस तरह से तो ये छोटा सा वोटिव मिनिएचर स्टूपा है जो कि इसकी कॉपी में बना हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये वाकई इसकी शक्ल ये थी जो कि कनिष्का ने पूरा स्टूपा बनवाया था। जब मन्नत पूरी होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ मन्नत टाइप ही। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं किस तरह पहले छोटी छोटी छतरियाँ थीं, शायद 2 ही थीं, एक थी छतरी, वो करते कराते 7 छतरियों में बन गया है। और जो स्टूपा है वो भी उठते उठते 3 सतह उसकी बन चुकी है, और जो बेस है वो भी कितनी बड़ी हो चुकी है। तो वो अब जो है ये फॉर्म जो थी वो फिर घूमते घुमाते चीन पहुंची, और ये जो स्टूपा है वो चीन में पगोडा बन गया। जो आज हम पगोडा कहते हैं वो यहाँ गंधारा में कनिष्का ने जो जिस तरह से शक्ल दी स्टूपा की, वो फिर चीनियों के पास जाके पगोडा बना, और वो पूरी दुनिया, पूरी बुद्धिज़्म में फैला, जापान में फैला, कोरिया में फैला। तो उसके आसार भी पेशावर में अभी तक नज़र आते हैं। ये छतरियों का क्या मतलब है? छतरियाँ उन्होंने भी वीडियो में भी बताया कि वो पहले तो 3 होती थी, कि 3 इसके मल्टीपल सिंबल्स हैं। एक तो है कि फ़र्क बुद्धाओं की अक्कासी करता है, बुद्धा ऑफ द पास्ट, बुद्धा ऑफ द प्रेजेंट, बुद्धा ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे मेरे ख्याल से इट रिप्रेजेंट्स द 7 स्टेजेस ऑफ बीइंग्स। 7 एग्जैक्टली, लेवल्स भी हो सकते हैं, ट्री भी से भी मुशाबियत है ना, 7 लेवल्स भी तो हो सकते हैं। वो भी हो सकता है, लाइफ टाइम से तो निकलना है, लेकिन हकीकत में शायद बीइंग लेवल्स ऑफ क्रिएशन है, समझ रहे हैं ना। लाइफ तो नीचे है, ऊपर टाइमलेस है, कोई लाइफ। इस चीज का किस तरह पता है कि ये एक्चुअली मिनिएचर है उस ओरिजिनल बुद्धा का जो क्योंकि वहीं से मिला, वो समझे हम बात, पेशावर से ही मिला। अभी भी पेशावर के म्यूजियम में ही है। जो बड़े बड़े स्टूपास होते थे उसमें छोटे छोटे चारों तरफ अभी भी उसी की कॉपी जो अभी भी, अगर आप जाएं ना बोध गया में जाएं या दूसरे स्टूपास में जाएं, तो उसी की मिनिएचर्स जो हैं वो अभी भी रखी होती हैं। तो लोग जो आते थे मन्नत मांगते थे जो भी है तबर्रुक के लिए, वहीं से लोगों से ख़रीद के फिर वहाँ रख के चले जाते थे। तो वो मेन स्टूपा की ही कॉपी होती थी, जिसकी वजह से जब ये चीज़ें मिली तो उन्होंने आइडिया लगाया कि जो असली स्टूपा भी इसी तरह का होता था। और फिर चंद आसार भी मिले वहाँ उस ढेरी में से, जिसकी वजह से वो कह सकते हैं कि वाकई में था। हाँ, तो ये ज़रूरी था पगोडा की शक्ल देख समझने में। उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ जो कि शाहजी की ढेरी से निकली वो थी कनिष्का की अपनी रेलिक्वरी, जहाँ पे हमें एक्चुअली कनिष्का की अपनी शक्ल भी यहाँ कहीं नज़र आती है, शायद इधर, हाँ इधर नहीं है, उस साइड पे होगी, लेकिन वहाँ कनिष्का की अपना पोर्ट्रेट भी है, और ये पेशावर म्यूज़ियम में है, आप जाके देख सकते हैं। जो अंदर तबर्रुकात थे वो तो रंगून में है, पता नहीं कैसे पहुँचे रंगून में, तो वो निकाल लिए गए। लेकिन जो रेलिक्वरी है, डब्बा जो है जिसके अंदर तबर्रुकात रखे जाते हैं, वो पेशावर में। और उसके अंदर हम बड़ा देख सकते हैं किस तरह से हेलेनिस्टिक और इंडियन स्टाइल्स एंड आइकनोग्राफी इज कमिंग टुगेदर एट द सेम टाइम। ये एग्जैक्टली, इवन लोटस
So Buddha, once again we see typical जो बुद्धिस्ट ट्रायड जिसे कहते हैं, बुद्धा सेंटर में और फिर दो उसके अटेंडेंट्स, यक्षा लाइक अटेंडेंट्स ऑन द साइड. ही इज सिटिंग ऑन अ लोटस थ्रोन एंड द इंटायर डब्बे का जो ढकना है वो पूरा एक लोटस ही की शेप में नजर आता है. ये भी इंडियन बात है. उसके नीचे जब हम इस बैंड में जाएं तो यहाँ पे हमें हंस नज़र आ रहे हैं, गीस, जिसकी हमने पहले भी जिक्र किया था कि उसका तो बहुत लोकल सिंबलिज्म है. शुक्रिया. उफ, आज तो बहुत ही खातरें हो रही हैं. अब आप ब्रेक ले लें. ब्रेक ले लेते हैं जी, यहीं पे हम गंधारा में ब्रेक लेते हैं. 5-10 मिनट बाद फिर से करेंगे. जी ठीक है. थैंक यू.